Hi guys, welcome to the analysis of geography section of Series A 2024 prelims paper. I have Chandraprabha Sharma with me, and we both will go through all the questions of only the geography section of the paper. About 20 questions we have, and we will be focusing on the NCERT angle and the PYQs angle. Our approach will be that if we are somebody who is giving the exam for the first time, who has prepared for 1 year, sincerely prepared, read the NCERT 6 to 12th, have done the PYQ since 1979, and is sitting for the exam. So no high flying assumptions are there that you have given multiple attempts also before this attempt. So a first attempter, a sincere first attempter student, how would that student be faring in this exam? Let us try to analyze the paper from that angle. So Prabha, I'll share my screen with you. Yes, sir, for sure. Yeah. And Okay. while you do that, sir, if I can just mention, it was only in my last attempt in 2023 where I got the rank 289 that you had insisted कि NCERT और PYQs का ही सहारा लेकर उसी का फोकस बना के रखना है. So thank you for doing this session because I think यही थोड़ा सा एक assurance भी मिल जाएगा future aspirants को, हमारे friends को कि yes, actually standard resources, if they just sort of not neglected, that will actually have huge payoffs. So thank you for doing this. Absolutely, yes. NCERTs, and in fact, we were discussing also कि ये पेपर में 20 questions were there roughly. Geography का अगर कुछ miss हुआ हो एक आध probably will get covered in environment section. But overall, roughly 20 questions are there, and almost all the questions are doable if people have done the basics, the NCERTs from 6 to 12th and the previous year questions well. So if they can open their minds and just remain cool in the exam, a lot of questions, and we'll go through them. So we have Series A paper here, 2024, and let us see. So I'll just explain the structure of this PDF. So we have the questions in the center. This is the questions part. In the left, we have the PYQ, the reference or the repeated PYQ, and in the right we have the NCERT portion. I just took the screenshot from the NCERT's relevant portions to show how the questions were solvable, right? So I'll zoom in so that the people who are watching it on video are not like stressing their eyes too much. It's visible for them. Is it okay, Prabha? Can you see it comfortably? Yes, sir, in the zoomed stage we can. Yes, okay. So the first question, this is Series A paper. The first question was very, very easy. Very directly it was mentioned. So it says atmosphere is heated more by insolation. You can see the NCERT. This is the fundamental. So I've given the snippet. The name of the NCERT is the first thing. So this is class 11th fundamentals of physical geography. And then you have the portion where it is mentioning the content. So the atmosphere is heated in long wave from below, from the earth, that is terrestrial radiation, right? So the first statement is wrong, and if the first statement is wrong, in the new options format we have only one option where the first statement is incorrect and where the second statement is incorrect. So last year itself we learned that in these kind of questions it's best to see if any of the statements is wrong, because in that case we can arrive at the answer by just that one statement alone. We don't even need to read the second statement, right? So this is a very, very easy question, very preparable. And now coming to the PYQs, we have this question. It came in 2012, question 49, and it said atmosphere can be heated upwards only from the Earth's surface. And the answer was Charlie. Charlie's first statement, and we wanted to identify the correct statement. So the first statement is correct, right? The PYQ also directly, it's a repetition of previous year questions. So one doesn't even need to go beyond 2011 in this case, right? So 1979 is very desirable for sure, but if one has done from when the new syllabus came, that's 2011, that also is fine. All right, so next is the second question, thickness of So the in the troposphere. previous one, if I can actually add from your the tool that I used to use जो आपने बनाया PYQ, उसी में से मैं अभी देख रही थी while you were speaking, 2022 से भी आया है. 2022 का जो क्वेश्चन 81 है,
उसका अगर हम पढ़ के जाएंगे तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सोलर रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, बिकॉज इट वाज डीलिंग विद दैट कॉन्सेप्ट, वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा तो स्टूडेंट्स विल वो भी बनेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस है यहाँ पर, तो मैंने सिर्फ जस्ट टू कीप दिस डिस्कशन, दिस वीडियो हाँ फेयरली जी, शॉर्ट, मैंने हाँ एक ही क्वेश्चन डाला है। नहीं तो ये देखो, ये टैग देखना है, दिस इज दी यस 1979 टू 2023 वाला पीवाईक्यू चैनल, इट्स नॉट द ईटी यस रिसर्च चैनल, एलिमिनेशन रिसर्च वाला नहीं है, जनरल वाला है, ये जीएस वाला है। एंड जी, एटमॉस्फेरिक, एंड दिस इज द लेवल ऑफ माइक्रो सेग्रीगेशन दैट इज देयर in this यस tool, right? If one clicks this tag, all questions dealing with atmospheric temperature, they will come. So the question which you are saying, that also is tagged this way only. हाँ जी, So ठीक है, हाँ, तो बस वो repetition ना हो तो इसलिए नहीं डाला है। डन। सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है, थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर की बात हो रही है, स्ट्रेट अवे अगेन फ्रॉम दिस क्लास 11th एनसीईआरटी, थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज मेंशन्ड हियर वेरी डायरेक्टली, एवरीथिंग is clearly mentioned, the answer here will be alpha. And also if we see the question again, now this time we are going backwards, right? 2004, the tag is atmosphere, and here thickness of atmosphere is being talked about, convection currents are being talked about. So this question is fully repeated in 2024 question, right? बिल्कुल direct, almost like verbatim repetition है ये। यस सर। तो एंड सर, PYQs बेस्ट है। इसमें इसमें वही है कि like as you know, I've been talking about mindset and mental health a lot on my with my Telegram community. इसमें ये रिस्क है because this is set A का first two questions are easy. yes, Now the challenge is when things are easy, self doubt होता है। आपको याद होगा all 5 attempts जो थे before the last one when I got I selected, know I used to just question कि अरे इतना easy क्यों देगा यूपीएससी। लेकिन होता है। वो जो कॉन्फिडेंस जो आप बताते थे लीप ऑफ फेथ लेना है, वो yes, पीवाईक्यू से ही आता है। तो हाँ क्योंकि हमने 2004 का किया हुआ होता पीवाईक्यू, वी वुड नो कि नहीं यूपीएससी एक्चुअली इजी क्वेश्चंस देता है। एंड देन हाँ, दैट लीप ऑफ फेथ एंड देन मार्किंग इट विदाउट टेंशन कि नहीं नहीं, डोंट सेल्फ डाउट कि ये इजी वाला है एंड जस्ट मार्क इट। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बहुत जरूरी है। जब तक एग्जैक्ट सिचुएशन में खुद को नहीं रखेंगे हम, will not know it, and it's just fear of the unknown. The more we do PYQs, the better we understand UPSC, and the more comfortable, the more calm we'll be in the exam hall. Third question भी बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, easy है। ये देखो, volcanic eruption का पूछा है, products of volcanic eruption, all will be the answer. We have the evidence from again the same book, Fundamentals class 11th book. So the good thing is most of the questions, and many questions are there which were asked from class 11th and 12th NCERT, but some questions were there which were asked from the older classes, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th classes, and also the old NCERT lands and peoples, उसमें से भी एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं. So the lesson for next year's preparation, next year's attempt is that if you have read only 11th and 12th, the Naya wala book, that will not help you in all the questions. To do best in geography, you should do all the new NCERTs of 6th to 12th, and also your basic those 10 chapters of GC Leong, जो वो biomes वाले chapters हैं, and lands and peoples वाला NCERT. That's very very important. तो यहाँ देखो, ये नई वाली NCERT में pyroclastic debris and all of this is mentioned here, nitrogen compounds, sulfur compounds, all of this. So the answer will be all four. Right? We'll discuss these questions from elimination angle later. We are just discussing from knowledge angle. Somebody who has not trained in elimination with me, that person also, how they can process the question. So nothing technical or nothing out of the box we are discussing here. Again, this question PYQ in 2001, it was asked, the tag is volcanism. And here the first statement, most magmas are a combination of liquid, solid and gas. So even if you don't know exactly, अगर NCERT से याद भी नहीं आए, फिर भी ये मालूम है कि solid, liquid, gas तीनों चीजें होती हैं, and यहाँ पे solid, liquid, gas, whatever, if anything is mentioned, that will be covered. तो यहाँ पे at least solid and gases तो mentioned है ही, ट्रू होने का ही चांस डेल्टा का है. फोर्थ क्वेश्चन, आइसोथर्मल मैप्स ऑफ जनवरी, ये तो बहुत ही फेवरेट एरिया है यूपीएससी का इन द रीसेंट टाइम्स. इट हैज बीन आस्किंग, अभी पीछे भी आई थिंक 23 में भी एक पूछा था, कॉन्टिनेंट और ओशन वाटर टेम्परेचर का शायद कुछ पूछा था 23 में. अब की बार यहाँ पे आइसोथर्म का पूछ लिया, और ये देखो यहाँ पे अगेन पूरा इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी से दिया हुआ है. वी आर नॉट रीडिंग इट आउट just to save time. People can pause the video and read if they wish. And so the first statement will be true.
एंड द सेकेंड स्टेटमेंट कोल्ड ओशन करंट दिया हुआ है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और गल्फ स्ट्रीम ये सब वार्म ओशन करंट्स हैं, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाता है. And this is the relevant PYQ which I found. It's not directly solving the question, but it is telling us that questions on isotherms have been asked previously also. So specifically January isotherm is mentioned here. I just gave this question for this purpose only. Otherwise the tag temperature is there. You can go through for the other questions. So January isotherm has been asked, although it was asked in the context of India only, but this is something which has been repeated previously. So the theme, like PYQs are not just important from content angle, but they are also helpful in identifying which areas, which topics, which micro topics you need to focus on for exam. Okay, fifth wala, kaise kiya? You've done the fifth question, Coco wala. How did you do? So in this one, I would say जब हम बात करते रहते थे कि accumulated life knowledge sort of a thing, वो sixth sense की तरफ जाते हुए गाना सुना है कोको. So that sixth sense was tilting towards Ghana. And that's where I would have gone. Also, I think in the exam I would have taken the risk and marked this. तो mainly वही था कि कोट डिवोर घाना का नाम सुना है in terms of कोको. बिल्कुल. Morocco not so much. Mediterranean, Algeria also Mediterranean. तो वो एक थोड़ा सा था. बिल्कुल नहीं, सही बात है. ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें फर्स्टली वी शुड नॉट डू देम इन द फर्स्ट राउंड unless you have read the NCERTs. Now this is the NCERT which I'm talking of, old NCERT, lands and people. यहाँ पे देखो Ghana, Coco, they are mentioned again. यहाँ पे Ghana is mentioned. So if you have read it, this is your first round question. 10 seconds it will take. Only one option is there with Ghana, you will mark it. But if you have not read it, then the accumulated knowledge that you're talking of, वो कामयाब होती है ऐसे क्वेश्चंस में. तो इन क्वेश्चंस को अगर नहीं पता तो फर्स्ट राउंड में मत करो, बट probably in the second round or in the third round, these are surely doable questions. If you have kept them in the end, these are the questions which you should certainly be thinking about. ये करने लायक क्वेश्चंस होते हैं, ये सॉल्व हो जाते हैं. द ओनली थिंग इज थोड़ा माइंड ठंडा रखना है यहाँ पे. ये देखो ऐसा क्वेश्चन एक पहले भी आया हुआ है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड एंड जेम इन द वर्ल्ड, अगेन राइट. सो अफ्रीका इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, एंड दैट इज वेयर द ओल्ड एनसीईआरटी लैंड्स एंड पीपल उसमें बहुत अच्छे से मेंशन्ड है. कॉन्टिनेंट वाइज ये सारी चीजें मेंशन्ड है, इकोनॉमिक एंगल से, पॉलिटिकल एंगल से, ज्योग्राफिकल एंगल से, बहुत सारा कंटेंट है ओल्ड एनसीईआरटीज में. अनफॉर्चुनेटली नई वाली में ये सब चीजें नहीं मिल रही हैं. ओके, ये भी एक क्वेश्चन है. नाउ दिस इज अ वेरी ब्लैक एंड व्हाइट क्वेश्चन. It's a simple question, it's an easy question, but it's completely black and white. That means either you know it or you don't. यहाँ पे overthinking का कोई scope नहीं है. Everybody will know कि ये NCERT से आ रखा है question. NCERT information is here. This is class 11th NCERT. This can be solved. हाँ, यहाँ पे सीक्वेंस सही नहीं दे रखा, ये सिर्फ ऐसा नॉर्मल मेंशन्ड है. दिस इज एक्सपेक्टेड कि आपको एटलस खोल के, ये बेसिक चीज है जो आपको सीक्वेंस लेफ्ट टू राइट अरेंजमेंट, नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट, वो सब यूपीएससी ने पहले भी पीवाईक्यूज में पूछा हुआ है. माउंटेन रेंजेस पूछा है, लद्दाख, ये जस्कार रेंजेस, नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट, कई सारे कॉम्बिनेशन यूपीएससी पूछता है. तो पीवाईक्यूज का जिसको ज्ञान है वो यहाँ का इंफॉर्मेशन से ये डिराइव कर सकता है कि दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच इज worth asking. In fact, I have asked these things repeatedly in the oral test classes which I used to take. बहुत रगड़ा दिया था इन चीजों पे. Also, PYQs बिल्कुल direct repetition है. This is again the GS CSE 1979 to 2023 वाला channel. ये देखो, ये मैप के साथ फोटो में आया था. एंड ओनली दीज रिवर्स विच वर आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम वर्बैटिम रिपीटिशन है. और यहाँ पर तो ईस्ट टू वेस्ट अरेंजमेंट ही पूछा हुआ, या जो भी है वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट. तो जिसने पीवाईक्यू किया 97 का था, उसकी बल्ले बल्ले है इस क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन. यू लाइक दिस क्वेश्चन राइट? I really like this question. ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होता है एग्जाम में अगर मैं दे रही होती, क्योंकि इसके पहले वाला जो था आई थिंक आई वुड हैव स्किप्ड इट, क्योंकि मेरा आई वुड हैव गॉट स्कैर्ड विद द फैक्ट अ लिटिल. एंड अज्यूमिंग अभी वाली प्रिपरेशन, अभी एग्जाम का ग्रुप छूट गया है, प्रीलिम्स एक साल पहले दिया था, रिवीजन नहीं है. यस, बट वही है कि फैक्ट है, जैसे आपने बोला फैक्ट हैवी है. तो इस क्वेश्चन के बाद जब ये आता
तो I would have felt a little at peace कि Yes. चलो ठीक है एक बबल कर देते हैं and यूपीएससी बिल्कुल अब इसमें सुंदर ज्योग्राफी क्वेश्चन। पेपर में ऐसा लग रहा था कि इट्स ट्राइंग टू सूद यू, बहुत परेशान करने वाला सीक्वेंसिंग ऑफ क्वेश्चंस, और इंफॉर्मेशन भी वैसा नहीं पूछा हाँ हुआ। लास्ट ईयर तो बड़ा पनिशिंग टाइप हो गया था, तो इस बार लग रहा है कि थोड़ा सा डुएबल टाइप बनाई है। So this is a question again very doable from the NCERT. Now this is the physical geography fundamentals NCERT and also science NCERT of a younger class. I think this is class 8th or something. Class is not mentioned here, but if you just search through the science NCERTs, the text, you will get it. So all this information, if you combine, you will be able to reach the answer. That is, both the statements are correct explanation. And if you see which PYQ are we talking of, the tag is weathering again. Now this is not the civil services exam channel, this is the other exam channel. NDA में पूछा था 2014 में ये क्वेश्चन, केमिकल वेदरिंग के बारे में आ रखा है, डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स के बारे में, हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट में पूछा हुआ है। तो ये सारी चीजें मतलब बिल्कुल परफेक्ट रिपीटेशन नहीं है, लेकिन दीज आर लाइक जस्ट माइलस्टोन्स दैट यू हैव, उसको कनेक्ट करके connecting the dots वाला है, you can reach the answer in this question. Certainly this is not a round 1 question. ये probably round 2 में भी करना ठीक नहीं होगा, round 3 में इसको आराम से ठंडे दिमाग से इसको किया जा सकता है। So for 2025, 26 beyond students, I remember how you used to tell us कि PYQs देख के समझ आएगा NCERT में पढ़ना क्या है, and वो एक रेड अलर्ट। दिस इज दैट एग्जाम्पल, क्योंकि कंटेंट इतना ज्यादा है तो एक बार बिल्कुल PYQs देख लिया तो हम वही करते हैं कि पहले टॉपिक का PYQs देख लिया टॉपिक वाइज फ्रॉम द टूल, एंड देन वी गो टू दैट सोर्स, वी रीड द सोर्स, एंड देन देयर इज अ रेड अलर्ट कि अच्छा हाँ ये पूछा था तो इसको अच्छे से कर लो। नहीं, That is- तरीका ही वही है, बिकॉज अगर आप अदरवाइज एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी भी पढ़ोगे ना, एक साल डेडिकेटेड 6-6 घंटे 8-8 घंटे भी दिन का पढ़ोगे, पूरी एनसीईआरटी 6 to 12th ओल्ड न्यू, नई वाली भी कवर नहीं कर पाओगे, ओल्ड तो छोड़ दो, एडिशनली नई वाले भी इतना इंफॉर्मेशन है एनसीईआरटी में। इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि पहले पीवाईक्यूज देखो, उसके बाद पढ़ना शुरू करो, नहीं तो बहुत एफर्ट खा जाएंगे और पता ही नहीं चलेगा क्या पूछ रहे हैं, कैसे पूछ रहे हैं। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन नॉर्थ सी वाला, वेरी गुड क्वेश्चन, डुएबल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसको कूलली करना है। इफ somebody knows the answer directly, अब ये जैसे वी हैव PYQs, CSE में आया था 2008 में, जस्ट एज अ सैंपल कि इस टाइप की इंफॉर्मेशन पूछी हुई है, वेयर इज माल्टा लोकेटेड, सो यू हैव दीज डिफरेंट सीज, एंड आई एक्चुअली यू सेकेंड मार्क नहीं हो रहा है, I'm unable to mark this. All right, just a second. I can do it this way. Yes. So this क्वेश्चन इज जस्ट टू शो कि भाई ऐसे तरीके से लोकेशन बेस्ड भी सवाल पूछता है यूपीएससी। नॉर्थ सी यहाँ पे है, नॉर्थ सी हैज बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स एक्चुअली। मैपिंग ओशियंस करके टैग है, डेडिकेटेड मैपिंग का टैग बनाया है, सिर्फ ओशियंस हैं उसमें, जैसे डेडिकेटेड यूरोप का मैपिंग का टैग है, तो ये बहुत डिटेल्ड टैगिंग हो रखी है इसमें, ये तो कहीं नहीं मिलेगा इस टाइप का सेग्रीगेशन। तो बहुत जल्दी एक्सेस, बहुत टाइम सेविंग है ये चीज, एंड इफ यू आर somebody is going through these questions, चाहे कहीं से भी कर लो, इट्स बेसिकली जस्ट अ कन्वीनियंस थिंग, बट पीवाईक्यू जरूर देखना चाहिए। अब नॉर्थ सी अगेन 2012 2011 में आया हुआ है नए सिलेबस में, तो if crude oil, in the context of crude oil, this C was mentioned, so certainly it becomes important कि कौन सी countries हैं इस important region के around, तो ये question वहीं से derive हो रहा है 2011 से ही। We can expect that this kind of question can be asked. I had asked these kind of questions also in the mapping course in the oral test. So एक तरीका तो ये हो गया कि आप 2011 क्वेश्चन से कर रहे हो। दूसरा तरीका ये है, इफ somebody is following the यूक्रेन रशिया वॉर also, वहां पर भी उसको पता चल जाएगा कि रशिया और नॉर्थ सी का तो कोई लिंक नहीं है। इवन फिनलैंड, नेटो का मेंबरशिप का चल रहा था बड़ा इशू, तो फिनलैंड एंड रशिया तो आंसर में हो नहीं सकते, एंड इफ बेसिक आइडिया इज देयर ऑफ नॉर्वे एंड जर्मनी, तो वहां से भी आंसर आपका आ सकता है। बाकी लैंड्स एंड पीपल्स ओल्ड एनसीईआरटी में भी नॉर्थ सी का कंट्रीज का मेंशन है। 9th वाला क्वेश्चन, चंद्रप्रभा, ये हाँ डाउट में चल रहा है।
तुम्हारा आंसर, you are agreeing with me, right, on this Yes. question in the answer? Yes, इसमें डाउट था. हाँ, but the doubt is answer may be alpha or bravo. We don't know how UPSC will treat Malwa. If it says Malwa, let me just show the map. Now this is class 11th ka Indian geography ka. You can see that Vindhya range is between river Narmada and Malwa plateau. So ideally, that's why I feel answer should be like Malwa should be incorrect here, because if a mountain range is between Narmada and Malwa, the Malwa plateau should not be extending through the mountain range and then reaching till river Narmada. So that's why I feel Malwa plateau galat hona chahiye. But some arguments are there that it is true also. So I'm just taking it. I feel answer would be alpha, but it may be bravo also. Depends on how UPSC is treating Malwa. If UPSC says Malwa includes all this area, so it will be true. In that case, answer would be only 2. Otherwise, if it is not including Vindhya range in Malwa, so answer would be alpha. So as of now, this question, we are not sure what is the answer. For Gersopa Falls, a direct question was asked in CAPF in 2018. It is formed on which river? The answer is Charlie, Shravati. So straight away, Netravati would be wrong here. So this is doable via PYQ. In fact, if we see otherwise, if we see the NCERT, Narmada and Dhuandhar are mentioned. Garsopa, the NCERT asked you to find out the name of the river on which Garsopa or Jog Fall is on. So you had to do this exercise, so you would be knowing the answer. And also Hundru Falls is there in NCERT. This is the Earth, Our Habitat NCERT. I think ये class 8th का है शायद ये book, ये सुबर्न रेखा का. 10th question, Prabha, how did you do? 10th तो वही है, static fact base है, yes, लेकिन we do read it and NCERT से आया है. बिल्कुल नॉलेज का है ये क्वेश्चन. तो वही है कि NCERTs में ये देखो, आवर हैबिटेट वाली NCERT है, यंगर क्लास की है, and Alps are mentioned, Appalachians are mentioned, Block Mountain में Vosges is mentioned. And if we see PYQs 1989 में, this is the significance of doing till 1979. 1989 में direct question है Block Mountain का Vosges के ऊपर. And again we had a similar question in 2021 CAPF. Fold mountain likha hai upar, Urals, Appalachians and Andes. If you see the answer, you'll get to know that in our question, Appalachians and Andes are fold mountains. So वही importance hai. So we should not just remain, we should not just stick to civil services PYQs. We have to go through the other exam questions also. वो भी helpful hai directly questions में. नेक्स्ट, ओके, 11th क्वेश्चन को फिलहाल नहीं डिस्कस करेंगे. ये मान के चलते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्टर के लिए ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा एग्जाम में, तो वो इसको छोड़ देगा. नाउ दिस इज द विजडम दैट अ फर्स्ट अटेम्प्टर स्टूडेंट शुड हैव कि ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, तो इसका टेंशन मत लो. दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच डू नॉट अफेक्ट द कट ऑफ. तो कट ऑफ वाले हैं जो इजी क्वेश्चन, पीवाईक्यू, रेपिटेशन, एनसीईआरटी से कंटेंट पूछ रहा है. बट इस टाइप के क्वेश्चन, ऑल्दो दे कैन बी डन, इफ समबडी हैज ट्रेन्ड इन एलिमिनेशन, लॉजिकल थिंकिंग, दे कैन डू इट. बट फर्स्ट अटेम्प्टर अगर इसको छोड़ भी देगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. एंड दीज आर नॉट वेरी न्यू क्वेश्चंस. लाइक क्वेश्चंस लाइक दीज हैव बीन आस्क्ड. 2022 में देखो क्वेश्चन आया था, गुजरात हैज द लार्जेस्ट सोलर पार्क, केरला हैज अ फुल्ली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट. इस टाइप्स का इंफॉर्मेशन पूछता रहता है. गोवा हैज द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सम फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट. तो ये पूछता रहता है, कोई ऐसे नयापन नहीं है. लेकिन अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो घबराने क्या नहीं है इन क्वेश्चन में. तो बस ये इंपॉर्टेंट एक चीज हो जाती है. वाटर वेपर वाला अगेन एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी. तो ज्यादातर हम देख रहे हैं कि नई वाली क्लास 11 12 की एनसीईआरटी से क्वेश्चन बन रहे हैं. ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट you should do the questions which are given at the end of the chapter. There are a few questions where this exercise would have helped. This is one such question. And do not miss, like
these things. Very confusing questions otherwise can be asked, which you will not be able to solve confidently. And these are the PYQs for question number 12. We have two PYQs talking about the thing. So this is basically a repetition of PYQs. This can be solved directly. Then you have question number 13. Now this is a difficult question. Did you solve this question, Prabha? 13th वाला? I did solve it. I have a feeling कि मैं एक्चुअल एग्जाम में होती तो मैं इसको रिस्क बाद में ही लेती, पहले तो बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे वही दिक्कत आ रही है. इतना समझ आ रहा है कि इक्वेटोरियल नहीं है बिकॉज ऑफ 50 सेंटीमीटर्स. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड वही फंस रहा है. द वेयर इट्स गेटिंग स्टक इज on point 3 and then trying to recall. Now the thing is, if you remember, 2023 में भी कोपन में मैं बहुत स्ट्रगल करती थी विद कोपन का, रिमेम्बरिंग कोपन. एंड बिकॉज पीवाईक्यूज में ट्रेंड नहीं था कोपन पे ज्यादा फोकस करने का, इवन दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन वो जो निटी ग्रिटी है उस पे टेंशन लेने का आई डिसाइडेड इवन देन 2023 की पढ़ाई में कि अभी उसको इतना टेंशन नहीं लेती. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि विद दैट लेवल ऑफ प्रेपरेशन आई वुड हैव नॉट रिस्क दिस. हैविंग सेड दैट, वो BCD में भी थोड़ा लॉजिक लगा के अगर हम करें तो वही है कि क्योंकि प्रेसिपिटेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर की बात हो रही है एंड एनुअल डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर्स इज लो हो रहा है, तो कोई भी ऐसा जोन जहाँ पे एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए. अगर ये याद कर पाए कि चाइना में एक्चुअली एक्सट्रीम रहता है चाइनीज टाइप ऑफ क्लाइमेट में, वो एक चीज वो करना पड़ेगा. सो दैट इज व्हाट माय थिंग वाज, बट आई वुडंट रिस्क इट इन दिस एटलीस्ट. नहीं, अगर इसको कोई छोड़ भी रहा है तो कोई इशू नहीं है, बट चाइना वाला इक्वेटोरियल वाला ये तो फिर भी कैंसिल आउट हो जाएगा. बट बिटवीन C and D विच वन इज द आंसर, वो थोड़ा ओवर थिंकिंग का स्कोप है यहाँ पे. हालांकि चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट वाज आस्क्ड इन वन ऑफ द PYQs. एंड अच्छा, कोपन वाला देखो, ये फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी बुक में कोपन क्लासिफिकेशन, marine west coast climate, humid subtropical climate, this was asked in pretty much detail. And if you see the same chapter actually, explanation of marine west coast, you will see here this is a question which is fully doable via NCERT, but it's a difficult question. तो अगर नहीं पता तो छोड़ भी सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है. Coriolis force, very easy question, NCERT से fully solvable, and previous year questions also are helping you in this question. Next, this is the question जहाँ पे बच्चे hopefully खुश हुए होंगे देखते हुए. हाँ, Coriolis बिल्कुल बिल्कुल, ये तो उन टॉपिक्स में से है जो कोई छोड़ के नहीं जाएगा. सब पढ़, Coriolis, जेट स्ट्रीम, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये सब टेम्परेट साइक्लोन सब पढ़ के जाएंगे. अच्छा, नेक्स्ट ऑल्सो दिस इज अ प्रीटी इजी क्वेश्चन. इसको थोड़ा सा संभल के करने की जरूरत है. इस क्वेश्चन में रिस्क है जल्दबाजी में आंसर मार्क कर देने का. नाउ ऑप्शंस हियर आर थैंकफुली गुड. मतलब ये बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शंस बना सकता था. 2 and 4 को 1 2 4 कर दे, 2 3 4 कर दे, 1 2 3 4 कर दे. इसको कंफ्यूजन मतलब ऑप्शंस जिस हिसाब से बनाए हैं, दैट्स व्हाई आई फील कि आई डोंट नो व्हाट एग्जामिनर इज लाइक काइंड ऑफ सूदिंग द स्टूडेंट्स इन 2024. इट फील्स ऑप्शन की वजह से बहुत हेल्प हो रही है इस क्वेश्चन में. नहीं तो अगर परेशान करना होता, यूपीएससी कुड हैव कंफ्यूज्ड यू. तो थोड़ा संभल के ऐसे क्वेश्चंस में. सर्टेनली नॉट a round 1 question, probably around 3 question or the medium level. It's a medium level question. Wherever you are doing these kind of questions, just put it in that round. Purely NCERT based otherwise किया जा सकता है. Our Habitat वाली जो book है, वहाँ पे ये circle of illumination and solstices, everything is mentioned. So you can just pause this video and read also this portion if you want to see how the NCERT is solving this question. Fully solvable via the NCERTs, not an issue at all. And of course important topic है तो previous year question तो मिलेगा ही. 2019 में ही पूछा हुआ है. 21st June में answer is alpha. It says on 21st June the sun does not set below the horizon at the Arctic Circle. तो ये Arctic Circle वाला जो ये point है PYQ से directly help हो जाएगा. तो ये question otherwise ठीक है, doable question है, बस थोड़ा ध्यान रखना है. 16th question कैसे किया प्रभा? इसमें लोग फंसे और थोड़ा है चैलेंजिंग क्वेश्चन है. ओके सर, यहाँ पर एग्जाम में थोड़ा सा मुझे वही होता है जो आप बताते थे ना कि आई रियली हैव टू ट्रस्ट माय एक्यूमुलेटेड नॉलेज एंड जस्ट पेरिफेरल क्यूरियोसिटी जो रहता है. सो
जस्ट एनवायरनमेंट का जो मेरा लव है, लव फॉर एनवायरनमेंट, उसमें बहुत बार डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में कॉन्गो दिखता है, एंड कॉन्गो Yes. की जब भी बात होती है तो पीटलैंड इज द नेक्स्ट कीवर्ड यूज्ड विद कॉन्गो. Yes. सो दैट कीवर्ड वुड हैव कम टू माय माइंड इन द एग्जाम. वो बार बार वो खटकता ना. अब Hmm. इसमें एक ही होता कि किकोरी एंड रियो डे प्लाटा का टेक्निकली मुझे याद नहीं आता उस टाइम कि क्या था. पढ़ा किकोरी तो मैंने पढ़ा भी नहीं था शायद उस Hmm. टाइम. Hmm. Hmm. तो इन दोनों में, बट अगेन फिर यही है कि आई थिंक आई वुड हैव टेकन द लीप ऑफ फेथ एंड जस्ट गॉन विद कॉन्गो, प्रोबेबली सर्कल्ड इट. Hmm. सेकंड राउंड में करती इसको, Hmm. लेकिन आई वुड हैव टू टेल माई सेल्फ कि नो, जस्ट टेक द लीप ऑफ फेथ एंड कर लो, जस्ट मार्क इट, Hmm. बिकॉज सिक्स सेंस इज सेइंग, Hmm. पेरिफेरल दिस थिंग इज Yes. सेइंग कि कॉन्गो है, ऐसा था. Yes. Yes. नहीं एंड बिल्कुल amazon इज सही. यूजली रेन फॉरेस्ट, हाँ. amazon रेन फॉरेस्ट, कॉन्गो Hmm. पीटलैंड मार्शलैंड, ऐसा थोड़ा सा था. Right. 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 बिल्कुल सही बात है. So the lesson from this question is those documentaries, planet अर्थ वाली डॉक्यूमेंट्री हो गई, या वो ऐसे संविधान वाली है, प्रधानमंत्री वाली, यूट्यूब पे मिल जाती हैं. कुछ क्वेश्चन उन्हीं से सॉल्व हो जाते हैं. So you need to keep an open mind. That's why in the beginning of this video I told कि माइंड खुला अगर होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन डुएबल होते हैं. शुरुआत में ही ऐसे क्वेश्चंस को टच मत करो, ये मुश्किल हो जाएगा. अदरवाइज फंस सकता है क्वेश्चन, ओवर थिंकिंग करके गलत हो जाएगा और नहीं तो टाइम खा जाएगा. शुरुआत में मत करो, बट probably एंड में ऐसे क्वेश्चंस को जरूर देखो. when there is nothing else to do, these are the kind of questions which you should think about. Very doable question. Answer is bravo. If you see the NCERT, this is class 12th biology का NCERT है, उसमें Amazon basin को, Amazon rainforest को lungs of the planet कह रहा है. तो lungs of the planet will give you a positive vibe, like it's more important for oxygen and those kind of rain and that kind of uh, aspect. Species का है, biodiversity hotspot है. और कॉन्गो की जब हम बात करते हैं, अफ्रीका की बात करते हैं, ओकावांगो स्वाम्प होता है, ये क्या सॉल्ट पैंस होते हैं. तो इस टाइप के एस्पेक्ट्स अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में हम ज्यादा सुनते हैं. ऑफ कोर्स दिस इज पेरिफेरल नॉलेज and not directly given in the books. If worst case scenario, if you can't recall these things, you can even leave this question. Not an issue at all. It's not a easy question. I've categorized it as a hard question, but doable है. पर फिर भी hard में डाल दिया just in case you are not able to see it. Okay, similar question was asked in 2023, present day extensive marshland. Now this actually I wanted to just highlight in this question कि यहाँ पे देखो world's largest tropical peatland दे रखा है. दुनिया का सबसे बड़ा कोई भी चीज अगर होगी तो वो हमारी नॉलेज से आना चाहिए. दिस इज द रीजन वाई सी एंड डी जो कि अननोन ऑप्शंस हैं, इस क्वेश्चन में अननोन ऑप्शंस का आंसर होने का चांस बहुत कम है. क्योंकि हम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट की बात कर रहे हैं तो आंसर इंपॉर्टेंट ऑप्शन होना चाहिए, जो कि या तो अल्फा होगा या ब्रावो होगा. और बाकी आपका जो एक्स्ट्रा नॉलेज है उससे आप जीरो इन कर लोगे. अगर अमेजोन बेसिन इसका आंसर होता तो हमको पता होता. वी वुड हैव हर्ड इट इन आवर बुक्स, जस्ट लाइक वी हैव दिस एनसीईआरटी. इट्स अ यंगर क्लास एनसीईआरटी. अमेजोन बेसिन इज लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड. वैसे ही वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पीटलैंड भी मेंशन्ड होता है एनसीईआरटी में ही. तो ये कुछ बेसिक टिप्स हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए. जैसे यहाँ पर भी प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड की बात हो रही है तो इंपॉर्टेंट चीज आंसर होना चाहिए. और मार्शलैंड के कॉन्टेक्स्ट में रण, सुंदरबंस, रण ये सुनते हैं तो आंसर वही है. अदर क्वेश्चंस आल्सो आर देयर. ये मैंने ईटी रिसर्च चैनल से लिया हुआ है. सो दिस अ सेपरेट चैनल, इट्स अ पार्ट ऑफ द PYQ's entire tool. So you can go through these links for these questions. Okay. बस एंड करने ही वाले हैं. काफी लंबा हो गया. एक्चुअली आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस वीडियो विल गो सो लॉन्ग. 45th क्वेश्चन, व्हाट डू यू फील अबाउट 45th क्वेश्चन प्रभा? तो वही है कि अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट, बट दिक्कत थोड़ी सी कीवर्ड में हो रही है जहां पर शायद कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. कॉन्सेप्ट अपनी एनसीईआरटी से ही है, हम पढ़ते हैं सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी. हाँ. स्टोरेज विल बी इजी अगेन, मतलब कि स्टोरेज क्योंकि वो है, इट इज सपोर्टिंग, इट इज अ सपोर्टिंग सर्विस, सो सेकेंडरी नहीं होगा. फिर उसके बाद डेयरी फार्म प्राइमरी ही है. फिर मिनरल एक्सप्लोरेशन में, नाउ द चैलेंज इज दैट सम ऑफ अस आर थिंकिंग दैट इट कुड बी प्राइमरी, बिकॉज एक्सप्लोरेशन प्राइमरी वाला रोल एक
प्राइमरी एक्टिविटी में आएगा। टर्शरी में लग रहा है कि अगर इफ देर आर सर्टेन सर्विसेज की बात हो रही है कि ये सिर्फ एक्सप्लोर हो रहा है, एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है। नाउ मे बी इफ वी थिंक अबाउट इट द अदर वे कि सिर्फ एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो शायद ओवर थिंकिंग का रिस्क है यहाँ पे। हाँ दैट इज बिल्कुल अनदर थिंग। बिल्कुल है, बिल्कुल है। एंड वीविंग क्लॉथ तो सेकेंडरी है ही, वो भी क्लियर सेकंड, है। तो बिल्कुल। यहाँ पर वही आई वुडंट वांट टू कमेंट बिकॉज थोड़ा सा मिनरल एक्सप्लोरेशन पे दिक्कत आ रही है, बट आई थिंक यू हैड बेटर गाइडेंस फॉर दैट सर। Right, right. नहीं, these are the kind of questions which UPSC regularly asks. ये PYQ भी है हमारे पास, ये देखो 22 में आया था. Which of the following constitute real sector in the economy? Again, conceptual clarity का question है, 4 options दिया है. And ये questions थोड़े रिस्की हो सकते हैं, शुरुआत में नहीं करने चाहिए. कॉन्सेप्चुअल होते हैं, थिंकेबल होते हैं, लेकिन यू नेवर नो कितना टाइम खा जाएगा ये. एंड ओवर थिंकिंग का स्कोप बहुत हाई होता है इनमें. तो अगर ये लास्ट में ही करो, जब बाकी सब हो जाए, इससे जो ज्यादा कॉन्क्रीट चीजें हैं, आसान चीजें हैं, वो हो जाएं, फिर ये क्वेश्चन करने के जरूर होते हैं. शुड श्योरली ट्राई दीज क्वेश्चंस, but don't spend too much time on these. If these are taking too much time, leave the question and move ahead. That's very very important. So PYQs I've shown you. एक और पूछा था CAPF में 2017 में, एग्रीकल्चर के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर, they belong to which? So primary sector, tertiary, these are all important areas which you have to know. And NCRTs में, अच्छा, again I told earlier that you have to look at the questions given at the end of the chapter. So in this question, these exercise questions, the ones which are given at the end of your NCRT chapters, these are helping. So if you have gone through questions like these, तो यहाँ पे overthinking का scope कम हो जाता है. So do make sure whoever is watching this video, अगर सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो या जनरली ऑल्सो कोचिंग भी ले लिया, तब भी ये क्वेश्चंस PYQs तो करो ही करो. NCRT में भी एवरीथिंग दैट इज मेंशन्ड, एक्टिविटीज हो गया, फोटोज हो गया, स्निपेट्स, कुछ भी जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, वो सब कुछ करना है. MCQ टाइप क्वेश्चन भी करना है, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो भी करना है. एवरीथिंग यू हैव टू गो थ्रू. And this is the portion of your human geography NCRT which will help in this particular question. Next is, okay, this is a fairly doable question. It's talking about aging population. Again, human geography NCRT, class 12th, declining population. Japan to yahi directly mentioned hai. And then aging population also is mentioned. And it says ki most of the NCR, most of the developed countries of the world. थोड़ा सा second, I think hang हो रहा है. Yes, it is hanging. So most of the developed countries of the world are having this problem of aging population, right? So answer should be 1, 2, 4. Easy question है, कर सकते हैं, थोड़ा सा सोचने की बात है. PYQs में अगर देखोगे, डेमोग्राफिक डिविडेंड के ऊपर बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे. You have these tags which you can go through, and we are talking about the CSE 1979 to 2023 channel. CAPF में भी 23 में अभी रिसेंट में ये पूछा है. ओके, नेक्स्ट आई थिंक सही है क्या? ओके, लॉन्गेस्ट बॉर्डर, इसमें फाइट आएगी अल्फा एंड ब्रावो के बीच में. अगेन दिस इज अ राउंड 4 लास्ट वाला क्वेश्चन है. थोड़ा डिफिकल्ट होगा शुरू में करना, फंसना नहीं है इसमें शुरू में. लास्ट में सब करने के बाद इस क्वेश्चन को देख सकते हो. डुएबल है, लेकिन थोड़ा संभल के करना है. NCRT अगर किसी ने प्रिपेयर करी है तो ह्यूमन ज्योग्राफी की NCRT में ये फोटोग्राफ आपको मिलेगी ट्रांस कैनेडियन रेलवे को, एंड लेंथ दिया है अराउंड 7,000 किलोमीटर्स, एंड फोटो है. तो ये तो this alone is 7,000. They have not counted the Alaska wala border. So if you add it, it will certainly be probably 7,500, 8,000, 9,000 kilometers. And Argentina and Chile was mentioned in the same NCRT like this. Very मतलब बहुत हल्के से mentioned है, और ये एकदम फोटो वगैरह के साथ, एकदम डेटा के साथ mentioned है. And another thing कि हम 7,000 को कैसे बोल रहे हैं कि important है, because if you read the chapter, Trans-Siberian Railway दिया हुआ है जो कि longest in the world बोला है, and it says it's about 9,300 kilometers. तो अगर 9,000 longest in the world है, तो 7,000 is coming pretty close to it. And if we add the Alaska का border, तो
आंसर ये सेफली हम बोल सकते हैं कि इसमें कनाडा एंड यूएस होने का सबसे हाई चांस है। अर्जेंटीना वाले में फिर ज्यादा टेंशन नहीं है। अदरवाइज कोई इस पे डायरेक्ट पीवाईक्यू नहीं पूछा गया है। इज इट लास्ट? दिस द लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें थोड़ा हम प्रभा एंड आई आर डाइवर्जिंग इन द आंसर। इट्स अ प्रिटी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, को इसको कैसे रीड कर रहा है। रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म। अच्छा, एक चीज देखने की है कि एनी फॉर्म बोला है। अगर YouTube ज्ञान से जाओगे तो एक्सट्रीम वर्ड इसको बोलेंगे तो एक्सट्रीम वर्ड गलत होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल ट्रू बात है। बिकॉज दिस हैज बीन आस्क्ड इन your PYQs also, it's given in the PYQs also, and it's given in the NCRT also, the physical geography NCRT, where horizontal distribution of salinity was mentioned. So Red Sea, it says, just see how it is mentioning Red Sea. In the landlocked Red Sea, the salinity is as high as something, right? So it basically is landlocked. If it is landlocked, means it is not connected to those oceans very profusely. And high salinity, if you read salinity के factors क्या होते हैं, तो high evaporation and less influx of fresh water are some of the factors. So that is where now the discrepancy is in the second statement. तो first statement तो true होगा, very little rainfall होगा, because ये, if you recall the pressure belts and all, NCRT में दिया हुआ है, subtropical high pressure belt, Arabian Peninsula, वो सब है, तो very little rainfall is fine. लेकिन ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, इसमें अब आप कैसे पढ़ रहे हो इसको, वो फर्क कर जाएगा आंसर में। इफ यू आर स्ट्रेसिंग ऑन नो वाटर, if you say the stress is on no water enters the Red Sea from rivers, तो you will feel कि भाई कुछ तो रिविलेट्स हो सकती हैं, छोटी मोटी स्ट्रीम्स हो सकती हैं, तो ये एक डीप फैक्ट बन जाता है। मतलब एक स्पेशलिस्ट ही कोई बोल सकता है कि कुछ भी पानी नहीं जाता है रेड सी में रिवर्स से, तो ये उस एंगल से गलत हो जाता है। दैट इज व्हाट प्रभा फील्स, राइट प्रभा? दैट्स व्हाट you feel, that the stress is on no waters, Yes, sir. right? No water. तो इसीलिए she feels the second statement is wrong. I, on the other hand, feel the stress is on the idea of no water entering the Red Sea from rivers, because of the way it is mentioning rivers. From rivers. From rivers means important rivers, or in important enough, from important enough quantity, actually, the water is not flowing. So that's what I feel the stress is on, and that's why I feel that because the NCRT is saying high salinity hai, to come fresh water influx hoga. So probably that is why it could be true also. So I personally feel the answer could be Charlie. Prabha feels, or many other students also would be feeling answer could be alpha. So it depends on how UPSC is tackling this statement. So we'll have to wait for the official answer key for confirmation. If UPSC gives alpha as the answer, then the stress is on no water. And if it gives Charlie as the answer, then the stress is on the idea of idea this statement is talking of. So, and another little note on mental health here as well. When the UPSC answer key for 2023 my year came out, there was a little bit of panic also in the let's take for example the money bill, financial bill question, जिसमें finance bill लेना है या financial bill लेना है वो नहीं समझ Right. आ रहा था, and finally when they gave the answer it wasn't clear which three statements have they considered to be true, like वो पता नहीं चल रहा था. I basically just put it out on my community that we can't do much about it. It is a factor that's out of our control. But then again, what we can look at is what is the underlying concept. बस वो अगर हम तैयार कर लें without worrying about कि अच्छा आंसर की का discrepancy वाला issue and all of that. तो instead of going into that little rabbit hole, we just have to be like, okay, what is UPSC trying to convey in terms of the importance of a concept? And if we just stick to fundamentals and not try to chase a source in any way, especially an obsolete source. स्टैंडर्ड सॉस का कॉन्सेप्ट कर लेंगे तो ठीक होगा सब. बिल्कुल, मतलब ये कुछ क्वेश्चंस हमेशा गड़बड़ में रहते हैं, तो बहुत ज्यादा टेंशन की बात नहीं है. इवन इफ somebody is going to get it wrong, either people like me are going to get it wrong, or people who feel alpha is the answer are going to get it wrong. It doesn't matter what is the answer in this question. It's just a lesson for the future years.
but this is a question which could have been attempted. It's an attemptable question. गलत हो गया तो it's an honorable mistake. तो कोई ऐसा स्ट्रेस वाली बात नहीं है. रेड सी के ऊपर PYQ भी आ रखा है एनडीए में 2016 में. Pretty direct question. Okay, I think that is one last question is there. Acha, this Venezuela wala question, many people are getting confused in the second statement कि ये true होगा कि नहीं. With elimination, if you have practiced a lot, you can process it, but we are not getting into that aspect right now. Don't worry about the second statement. Just read the first statement. The first statement, in my opinion, should not be true because it says recently Venezuela has achieved a rapid recovery, rapid economic recovery, and succeeded in preventing its people from fleeing oblique emigrating to other countries. Now this is a very big thing. If this kind of thing happens, any country, if it is making very rapid economic strides, it becomes a case study. It becomes a angle where it will be mentioned in your editorials and in your articles. So वो पता होता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है and also इतना बड़ा इतना फास्ट रिकवरी हो गया कि लोग इतने खुश हो गए कि वो फ्ली ही नहीं कर रहे हैं, इमिग्रेट ही नहीं कर रहे हैं टू अदर कंट्रीज, किसी भी कंट्री में नहीं कर रहे हैं. तो ये थोड़ी बात हजम होने वाली नहीं है. इट्स वेरी हाईली लाइकली दैट दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड in this kind of framing, if we can find one incorrect statement, we'll reach the answer. So the only option which has got statement 1 as incorrect is delta. So directly answer आ जाएगा. स्टेटमेंट 2 में घबराने की बात ही नहीं है, इसमें घुसने की जरूरत ही नहीं है. तो कोई अगर फर्स्ट अटेम्प्टर होगा, just remain cool and try to find the wrong statements first in these kind of questions. बाकी अगर एलिमिनेशन किसी ने प्रैक्टिस किया है, सेकंड स्टेटमेंट हो भी सकता है, बट अगर प्रैक्टिस नहीं भी किया तो कोई ऐसा बहुत बड़ा नुकसान नहीं है. Lands and Peoples, old NCERT is talking about oil being huge deposits of oil being there. वैसे ये एक true statement है. I feel by elimination also this should be a true statement. Option से तो true ये बता ही रहा है. And you had a similar question also in 2018. It was about severe, lakhs of people suffering from severe famine or malnutrition, dying because of war, ethnic conflicts. तो ये बहुत बड़ी बातें होती हैं, ऐसी चीजें न्यूज में रहती है. रोहिंग्या क्राइसिस हो गया, ये सीरिया वाला क्राइसिस हो गया, राफा वाला क्राइसिस हो गया, ये बहुत बड़ी बात होती है. एंड ऐसे क्वेश्चंस में आंसर जनरली फेमस कंट्रीज में से जो न्यूज में रहती हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में, नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में जो न्यूज में रहती है, उनमें से होता है. तो और ऐसी चीजें इतनी जल्दी ठीक भी नहीं होती हैं. तो इस क्वेश्चन में वेनेजुएला इज नॉट द आंसर बिकॉज ये उतना प्रोमिनेंटली नहीं था. प्रोमिनेंटली यमन एंड साउथ सुडान थे इस कॉन्टेक्स्ट में, तो हमने मार्क किया था डेल्टा. लेकिन बिकॉज वेनेजुएला इज mentioned as one of the countries in this list and it's an important country otherwise, तो इस context में अगर mentioned है, so this could be a hint कि यहाँ पर कुछ ऐसी गड़बड़ चल रही होगी कि यूपीएससी ने वेनेजुएला को ऑप्शन बनाया है. तो और अगर कुछ ऐसा है तो ये प्रॉब्लम्स इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होती हैं. सिर्फ 2018 का क्वेश्चन है और 2024 में 6-7 साल में ही इतना कोई प्रोग्रेस नहीं करता कि पीपल आर नॉट fleeing or emigrating to other country. तो चांस कम है कि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो. तो कनेक्टिंग द डॉट्स वाली बात होती है. अगर PYQs किए हैं तो इनडायरेक्टली हेल्प इस क्वेश्चन में हमको मिल रही है. So guys, that will be all in all of these questions. Just a very quick summary of the difficulty level of geography. I'll just stop sharing the screen, Prabha. Yes. Yeah. So overall, we discussed 20 questions. I think it will be a pretty long video. Overall, we discussed about 20 questions, out of which in the first round, in which we do only the very easy questions, we have about 5 questions. जो easy questions हैं. 11 questions are there which are medium and 5 questions are there which are hard. So this 20 के 20 question तो कोई ना भी करे अगर, if somebody is leaving maybe about 2-3 questions छोड़ रहा है, 2-3 question गलत भी हो गए, तो I feel 13 to 14 questions can be done correctly out of 20 questions in geography in this paper. And that is why I feel it was
नॉट अ वेरी इजी पेपर ज्योग्राफी में, लेकिन बहुत डिफिकल्ट भी नहीं था, मीडियम रेंज का ज्योग्राफी में रहा है। 13 to 14 क्वेश्चंस कैन बी डन करेक्टली बाय अ फर्स्ट अटेम्प्टर, एंड 2-3 क्वेश्चन गलत भी होंगे। 15-16 अटेम्प्ट कर रहा है, 2-3 गलत, 12-13 सही कर रहा है। तो दैट्स माय फाइनल असेसमेंट इन दिस पेपर, कि अ फर्स्ट time student who has prepared for 1 year sincerely, read the NCERTs from 6th to 12th and done the PYQs, can do 13 to 14 questions in this paper. Do you agree, Prabha? क्या लग रहा है? सब सेक्शन वाइज सिर्फ ज्योग्राफी अगर पे करें तो क्वेश्चंस थे जिनको देख के एक्चुअली खुशी भी हुई थी और सुकून भी मिला था मुझे। जस्ट इमेजिनिंग माई सेल्फ इन द शूज ऑफ आवर फ्रेंड्स एंड एस्पिरेंट्स हु जिन्होंने आज का चैलेंज फेस किया। I know. बस वही है कि क्योंकि अभी सिलेक्शन हुआ है एंड थोड़ा सा क्या बोलूं, कभी कभी ऐसा लगता है कि जो भी मिला बहुत लक से मिला है। तो लक फैक्टर बिल्कुल। मतलब क्योंकि घर के आराम के उसमें बैठी थी और पेपर देख रही थी, तो वही है कि I know. आई वुड बी नोबडी टू से एनीथिंग वाज इजी। लिटरली जस्ट पिछले साल हमें पता है सर, हम दोनों थे क्या क्या I पैनिक know. हुआ था। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं वही थोड़ा सा अवॉइड ही कर रही हूँ क्योंकि स्पेशली हाँ, मेरी कम्युनिटी भी है एंड आज आई हम्म वाज जस्ट टेलिंग देम कि जो भी हो जस्ट बी एट पीस, हम्म। इट इज ब्रेव इनफ टू जस्ट गो एंड फेस द प्रीलिम्स अरे बिल्कुल। एंड तो हम्म। वही है। आई इजी एंड डिफिकल्ट, तो आई थिंक यू आर अ मच बेटर जज इन दैट। आपका इतना रिगरस पीवाईक्यू एनालिसिस है जिसका फायदा मैंने बहुत उठाया एंड दैट वाज वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर मी टू इवन क्लियर माय प्रीलिम्स इन 23 फाइनली, ब्रेक नहीं माय प्रीलिम्स बिल्कुल फर्स्ट। सो बिल्कुल। यू आर द बेटर जज इन दैट कि क्योंकि आपका पीवाईक्यू का एनालिसिस इतना ज्यादा रिसर्च बेस्ड है। एब्सोल्युटली नहीं, बात अल्टीमेटली बस वही घूम फिर के आ रही है कि कुछ बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, वन हैज टू गो टू दिल्ली आके महंगी कोचिंग्स में पढ़ना है या महंगे टेस्ट सीरीज लगाना है, कुछ नहीं, बेसिक जितना सिंपल किसी भी स्टूडेंट ने अपने अप्रोच को रखा, सिंपल मतलब एनसीईआरटी सारी फ्री में अवेलेबल हैं, पीडीएफ से ही कोई अगर एनसीईआरटी पढ़ लेगा एंड पीवाईक्यूज लगा लेगा, उसका काम इस टाइप के पेपर में बहुत अच्छे से चल जाएगा। बाकी अब देखते हैं अगले साल, लेसन्स वही है, क्वेश्चंस करने हैं नए एनसीईआरटी, पुराने एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यूज, एंड ट्रेंड अभी तक मतलब लगभग ये चीज काम करती है। आज तक ऐसा नहीं है कि जिसने सिर्फ इतना किया है वो बिल्कुल ही फ्लंक हुआ है या बहुत ज्यादा कुछ बड़ी बुक सविंदर सिंह या खुल्लर या कुछ इस टाइप के पढ़ने की जरूरत पड़ी, वो रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यू जस्ट हैव टू मेंटेन योर कूल। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ऐसा होता है कि दिल्ली जाए बिना तैयारी नहीं हाँ होगी, बिल्कुल तो ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं है। बहुत कम इन्वेस्टमेंट में भी तैयारी हो सकती है, यू जस्ट हैव टू हैव द राइट गाइडेंस, वो बहुत जरूरी है। वही है सर, आपको याद होगा टिल माय फोर्थ अटेम्प्ट आई वाज जस्ट सो फैक्ट हैवी विद एवरीथिंग कि हाँ यूपीएससी भी पूछ लेता है, सब कुछ रटने की कोशिश करो, वही एटीट्यूड वही अप्रोच बिल्कुल। एंड पीवाईक्यूज को अटेंशन ही नहीं दी क्योंकि लगता था कि चलो एडवांस जितना एडवांस बुक पढ़ेंगे उतना अच्छा परफॉर्मेंस होगा। हाँ वही फाइनली यू शैटर्ड दैट बिलीफ फिफ्थ सिक्स्थ अटेम्प्ट तक वो समझ आया कि नहीं, एकदम फंडामेंटल्स पे चले जाओ, गो बैक टू द बेसिक्स एंड दैट वाज व्हाट गेव मी रिटर्न्स एंड it just made prelims preparation so delightful and just so stress free because it यस। became less about factoids हम्म। and more about just trusting our common sense, trusting our logic, and then of course just trusting the fundamental books like NCERT and PYQs. तो बिल्कुल। अगर अगर PYQs नहीं, बेसिकली आप वही बोलते थे, डू नॉट टेक अप एनी अदर सॉर्स एट द कॉस्ट ऑफ PYQs. यस यस। And last की 1 month में I think we were just looking at PYQs. We stopped everything. ओनली पीवाईक्यूज, ओनली No, पीवाईक्यूज। no non-UPSC mocks, nothing. नथिंग, इट्स तो नॉट वही नीडेड। है, a lot of assurance. So thank you for doing this because even for my community members जो 25, 20, 26 का टाइम दे रहे हैं, it will be very assuring that they really need to look at PYQs and fundamentals because it is a leap of faith to even believe that. बिल्कुल, शुरुआत में थोड़ा सा घबराहट होती है कि क्या सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक बार जब करने लगते हैं ना, देन यू गेट दैट एविडेंस, तो एविडेंस बेसिस पे ही अपने आप फिर मोटिवेशन आने लगता है। बिल्कुल। बहुत लोग कोचिंग मॉक्स के बारे में सोचते हैं कि उनका सिग्निफिकेंस कितना है। आई वुड लाइक द व्यूअर्स ऑफ दिस वीडियो एक्चुअली रिक्वेस्ट देम टू कमेंट, अगर किसी ने कोचिंग मॉक्स लगाए हैं तो इस पेपर में कोचिंग मॉक्स से कितना फायदा हुआ। ये कमेंट्स देने से फायदा ये भी होगा कि जो भी इस वीडियो को देखेंगे, इस कमेंट सेक्शन में जाके एक आइडिया मिल जाता है कि भाई कोचिंग मॉक्स को कितना
सीरियसली लेने की जरूरत है। किसी ने लगा लिए तो भी ठीक है, कोई बुराई नहीं है उसमें, बट सर्टेनली नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पीवाईक्यूज। किसी ने पीवाईक्यूज नहीं किया और फिर कोचिंग मॉक से पीछे भाग रहा है तो वो तो फिर सुइसाइडल हो सकता बिल्कुल। एंड है ना। इसी पर आपने ये एडवाइस दिया था हमें कि पीवाईक्यूज तो प्रायोरिटी, बिफोर रीडिंग द टॉपिक देन रीड द टॉपिक देन वी डू द पीवाईक्यूज, आप ऐसे कराते थे। बिल्कुल। फिर आपने बोला था कि सेक्शनल्स लगा सकते हैं, हाँ, उसका वैल्यू ज्यादा होगा कोचिंग मॉक्स का कि सेक्शनल्स लगा सकते हैं एक बार पीवाईक्यूज हो जाए तो। ओनली सेक्शनल देन। में बिकॉज एक ही टॉपिक के ऊपर इतने सारे सवाल वो लोग बनाते हैं तो मेहनत वो लोग भी खूब करते हैं, बट फुल लेंथ टेस्ट्स में और सेक्शनल्स थोड़ा मेरे को एंड पर्सनली। आपने वो बताया था सेक्शनल्स में वैल्यू बस यही है कि कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लें, हम ये हाँ समझ लें कि बस कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया या नहीं, और नहीं आया तो फिर जस्ट गो बैक टू द फंडामेंटल्स अगेन। हाँ एंड देन ऑफ कोर्स लास्ट मंथ में किसी भी मॉक के स्कोर का टेंशन नहीं लेना, अगर दे भी रहे हैं, विच आई डोंट हाँ रेकमेंड इट इन द लास्ट मंथ, बट अगर दे रहे हैं तो स्कोर्स तो बिल्कुल भी स्कोर, परेशान। हाँ सिर्फ ये है समझ में, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं कि नहीं, वो सेक्शनल से भी क्लियर हो सकते हैं, मॉक से भी क्लियर हो सकते हैं। यू शुड लर्न टू गिव द रिक्वायर्ड अटेंशन टू मॉक्स। उनको जरूरत से ज्यादा सीरियसली लेने से तो अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है बस, है ना। चलो प्रभा, काफी देर थैंक हो यू। गई, बहुत देर तुमको इस वीडियो में भी आई इंगेज थिंक हो गई। बहुत वैल्यूबल इनसाइट्स आए हैं सर, सो आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर द। चलो राइट राइट, सो थैंक यू सो मच प्रभा। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए विल कम्युनिकेट सून। टेक डन। केयर, थैंक यू, थैंक बाय, यू। गुड नाइट। गुड नाइट।